अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से ऑनवर्ड हम इंग्लिश स्टोरीज़ जिसके ज़रिए से हम इंग्लिश वोकेबलरी लर्न कर रहे थे, इसके साथ साथ डॉन न्यूज़ और डॉन न्यूज़ में एडिटोरियल, डॉन न्यूज़ में ओपिनियन, उनको भी हम साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। उससे एक तो फ़ायदा हमारा इंग्लिश रीडिंग का फ़ायदा होगा, जो आपके आइट्स के कोर्सेज़ में और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के हवाले से, जनरल नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से और वोकेबलरी भी आपकी डेवलप हो सकती है। और साथ आपके जितने भी करंट सिचुएशन होती हैं उसमें अप्स एंड डाउन, वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं। सो इस हवाले से आज का हमारा एडिटोरियल, जिसका टॉपिक भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम एडिटोरियल को थ्रू आउट रीडिंग करेंगे और उसके बाद हर पैराग्राफ को वन बाय वन उसको गो थ्रू करेंगे और उसमें जो मुश्किल वर्ड होगा उसके ऊपर हम गौर करेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, इसके मानी क्या हैं, उसके सिनोनिम और एंटोनिम क्या है। तो यही हमारा पैटर्न चलेगा और इसमें से कुछ बेहतर आपकी सजेशन होगी या कोई आपकी तरफ से बेहतर इनपुट होगा या मेरी समझ में कुछ और बेहतर इसमें इनोवेशन हुई तो वो भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के एडिटोरियल का टाइटल है व्हाट एग्जैक्टली आर आवर पॉलिटिकल पार्टीज फाइटिंग फॉर इन द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, व्हाट आर देयर प्लान्स। एक्चुअली इस जो एडिटोरियल है इसका टाइटल भी व्हाट इज़ प्लान इस नाम से है। तो एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लड़के से लिए रही हैं जो आने वाले इलेक्शन है, इसमें एम्बिग्विटी है। आवाम को जो है वो मैसेज कन्वे करने की जो ज़रूरत है वो अभी तक पेश नहीं किया गया, उस हवाले से। सो पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्लान, व्हाट एग्जैक्टली are our political parties fighting for in the upcoming elections? What are their plans? What promises are they willing to make to their constituents? The vast majority of whom are expecting significant improvement in their social and economic conditions post Feb 8, यानी इलेक्शन की डेट का यहाँ पे जिक्र है। लेस देन 3 weeks फ्रॉम द पोलिंग डे, इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी स्टिल डू नॉट नो द फ्रंट रनर्स इन द रेस, द PTI, द PMLN and the PP have all largely avoided providing details about how they plan to conduct their governments. The PPP has admittedly issued a 10-point to-do list it has called a manifesto, but this can hardly be considered one given how lacking it is in details about how its ambitious promises are to be achieved. Meanwhile, the PMLN has kept delaying the unveiling of its long-awaited manifesto, while the PTI made one abortive attempt before fresh challenges to its survival began consuming all its energies. It cannot be argued that parties have not had enough time to prepare for starters. Elections are being held around 3 months after they became due under the constitutional timeline. This means the parties got 3 additional months to work on their action plans. Not only that, Pakistan's economic troubles have been thoroughly dissected over the past year and a half, meaning each party's policy tasks had more than enough time and material to come up with their proposals on how best to address them. Lastly, considering how hard the entire state apparatus has been pushing for the political reset, one would have assumed that the parties being positioned to fill the vacuum left after the PTI's relegation on non grata status would have had some new ideas with which to rally public support
to their side. Clearly, nobody seems to have taken much interest in doing their homework. It seems that the parties are greatly underestimating the burden they will receive if they come to power, considering the plethora of challenges being faced by the country. Navigating the troubled waters Pakistan is in will not be an easy task. Which party, whichever party goes on to form the next government, will face steep challenges during a period of painful social and economic adjustment. In this context, it would have been helpful for voters, observers, and commentators to have reference to some document against which they could judge each party's suitability to govern at such a critical juncture in the country's history. Unfortunately, the biggest parties have chosen the ad hoc approach: get power first, decide what to do with it later. They ought to take a lesson from the Jamaat Islami, which, despite its very modest as prospects, seems to have expended considerable thought and effort on delineating what it can achieve if given executive power. And this Dawn published 20th 24 जनवरी. सो अब हम मूव करते हैं, अपने एडिटोरियल को थारोली रीड करते हैं और इसके मुश्किल अल्फाज पे भी बात करते जाएंगे मीनवाइल साथ साथ. What exactly are our political parties fighting for in the upcoming general elections? What are their plans? ये तो इसका है टाइटल. What promises are they willing to make? What promises, कौन से वादे, are they willing, वो इस चीज़ पर राज़ी हैं, to make to their constituents, कि जो वो पूरे करेंगे अपने इलाकों से जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? अनासिर, इलाके. और इसके सिनोनिम है कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, पार्ट्स. और इसके एंटोनिम है होल, इंटायरली, एग्रीगेट. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ whom are expecting significant improvement in their social and economic conditions post Feb 8. और यहाँ पे वास्ट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है. वास्ट का मतलब वसी होता है. इसके सेम मानी रखने वाले वर्ड हैं इमेंस, एक्सटेंसिव, वाइड. जबकि इसके एंटोनिम है लिमिटेड, नैरो, कन्फाइंड. Less than 3 weeks from polling day, it is strange that we still do not know. Strange का मतलब अजीब. और इसका ये एडजेक्टिव है और इसके सेम माने रखने वाले वर्ड हैं अनयूजुअल, पिकुलियर और ऑड. और इसके एंटोनिम है फैमिलियर, कॉमन और नॉर्मल. द फ्रंट रनर्स इन द रेस, यानी कि जो सबसे आगे आगे चल रहे हैं या मेन इस रेस में है, द पीटीआई जमात है, द पीएमएलएन एंड द पीपीपी हैव लार्जली अवॉइडेड. उन्होंने बहुत हद तक बचाव किया है या उन्होंने इसको अवॉइड किया है, उससे बचे रहे हैं. प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट, ताकि वो वजाहत या उसकी वाज़े एक वजाहत फराम करें या तफसील फराम करें अबाउट हाउ दे प्लान टू कंडक्ट देयर गवर्नमेंट, कि वो अपनी गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे अगर उनको गवर्नमेंट मिल जाती है. द पीपी हैज़ एडमिटेडली इशूड अ 10-point to do list it has called a manifesto, but this can hardly be considered one given how lacking it is in details about how its ambitious promises are to be achieved. तो पहले वर्ड हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से. एडमिटेडली, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है. अनडाउटेडली, ग्रांटेड. और जबकि इसका एंटोनिम है डिस्प्यूटेबली. जबकि मैनिफेस्टो है, इसका मतलब होता है डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन. मंशियात यहाँ पे लिखा है वर्ड, यानी कि जो इशात की गई हो, जिसकी वजाहत की गई हो. जबकि इसके एंटोनिम है कंसीलमेंट और सिक्रेसी, यानी कि जो चीज़ छुपा के रखी हो. एम्बिशियस का मतलब होता है एक बड़ा पुरजोर
आलिमाना जिसमें बहुत इल्म और फ़िलासफ़र की बात की हो। एम्बिशियस का मतलब बहुत बड़ा एक जज्बे के साथ आया हो। एस्पायरिंग इसके वर्ड हैं सेम रखने वाले मानी जो गोल ओरिएंटेड हैं, जबकि इसके एंटोनिम है अनअम्बिशियस, मोडेस्ट। लैकिंग होता है कमी होना, खलकी जिसको डेफिशिएंट, एब्सेंट कहते हैं, और जबकि इसके एंटोनिम है अबंडेंट और कंप्लीट। अब यहाँ पे हम चलते हैं पीपी। द पीपी हैज़ एडमिटेडली इशूड, यानी कि वाज़े तौर पर जो पीपी है, पीपी पार्टी है, उसने 10 पॉइंट की एक जो काम वो करेंगे मैनिफेस्टो के नाम से उसने एक लिस्ट पब्लिश की है। कैन हार्डली बी कंसिडर्ड वन गिवन हाउ लैकिंग इट इज़ इन डिटेल्स, कि वो उसके अंदर बहुत कमियां हैं, यानी उसके अंदर कमी है, वजाहत की तफसील उसमें भी नहीं है अबाउट इसके मुतालिक हाउ इट्स एम्बिशियस प्रोमिसेस आर टू बी अचीव्ड, कि इसमें इतने जो उन्होंने खुल के वादे किए हैं वो इन वादों को पूरा कैसा करेंगे। मीन वाइल द PMLN हैज़ केप्ट डिलेइंग, डिलेइंग का मतलब होता है देर करना। द अनवेलिंग, अनवेलिंग होता है किसी चीज़ से पर्दा हटाना, ऑफ इट्स लॉन्ग अवेटेड मैनिफेस्टो, वाइल द PTI मेड वन अबॉर्टिव अटैम्प्ट। अबॉर्टिव का मतलब होता है बेनतीजा, यानी कि PTI ने भी एक बेनतीजा कोशिश की बिफोर फ्रेश चैलेंजेस टू इट्स सर्वाइवल, जो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक जतन कर रहे हैं, बिकन कंज्यूमिंग ऑल इट्स एनर्जी, जिससे पहले उसकी तमाम जो एनर्जी है वो कंज्यूम होना हो रही है या होना शुरू हुई। इनके पहले हम वर्ड देख लेते हैं। अनवेलिंग का मतलब होता है आगाज़ करना, इजहार करना, जिसके सेम मानी रखने वाले वर्ड है रिवीलिंग, डिस्प्लेइंग, जब इसके एंटोनिम है कंसीलिंग और कवरिंग। अबॉर्टिव का मतलब होता है नाकाम, बेनतीजा, और इसके सेम मानी रखने वाले अल्फाज हैं अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस, जबकि इसके एंटोनिम है सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव, जबकि सर्वाइवल, बका, ज़िंदगी बाकी रहने के लिए कोशिश, और इसकी एग्जिस्टेंस एंड्योरेंस है, सेम मानी रखने वाले वर्ड, और एंटोनिम है डिमाइज, एक्सटिंक्शन, जबकि कंज्यूमिंग के मानी हैं खर्च होने वाला, ज़िया करना, जबकि इसके सेम मानी रखने वाले सिनोनिम्स हैं एक्सपेंडेबल, एग्जॉस्टिंग, और जबकि एंटोनिम है प्रिजर्विंग और सेविंग। और ये वर्ड अनवेलिंग नाउन और वर्ब दोनों की जगह इस्तेमाल होता है। अबॉर्टिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, और सर्वाइवल जो होता है वो नाउन के तौर पर, और जबकि कंज्यूमिंग जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। मीनवाइल द PMLN हैज़ केप्ट डिलेइंग द अनवेलिंग ऑफ इट्स लॉन्ग अवेटेड मैनिफेस्टो, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था या बहुत अरसे से इंतज़ार था, जो नून लीग है उसने भी अपने इस मैनिफेस्टो के इजहार और इकरार का जो है वो देर की, यानी कि उसको डिले में रखा। वाइल द PTI मेड वन अबॉर्टिव अटैम्प्ट, PTI ने एक नाकाम कोशिश की बिफोर फ्रेश चैलेंजेस, इससे पहले जो उनको चैलेंजेस दरपेश थे, टू इट्स सर्वाइवल, अपनी बका के लिए, बिकन कंज्यूमिंग ऑल इट्स एनर्जीज, उसने अपनी सारी एनर्जीज जो हैं उनको कंज्यूम करना शुरू कर दिया, यानी कि वो एग्जॉस्ट होना शुरू हुई। इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड दैट द पार्टीज़ हैव नॉट हैड इनफ टाइम टू प्रिपेयर, अब ये नहीं कहा जा सकता या ये वजाहत नहीं दी जा सकती कि पार्टीज़ के पास काफ़ी टाइम नहीं था। आर्गूड का मतलब होता है बहरान, कंटेंडेड इसके सेम मानी, और एग्री करना इसका एंटोनिम है। फॉर स्टार्टर्स, जब इन्होंने आगाज़ किया, इलेक्शन आर बीइंग हेल्ड अराउंड 3 months आफ्टर दे बिकेम ड्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन, जब आइन को देखा जाए तो जो इलेक्शन को हो जाना चाहिए था उस टाइम के 3 महीने बाद हो रहे हैं। दिस मीन्स द पार्टीज गॉट 3 additional months टू वर्क ऑन देयर एक्शन प्लान्स, इसका मतलब है कि पार्टीज़ को 3 महीने मज़ीद भी मिले कि वो इस पे अपना काम कर सकें। इसमें नेक्स्ट जो हमारे 2 वर्ड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है दस्तूरी, आइनी, लीगल, लॉफुल इसके सेम मानी रखने वाले हैं, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है गैर आइनी। एडिशनल का मतलब इजाफी है, और इसके सेम मानी रखने वाले एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट्री, और इसके एंटोनिम है इसेंशियल। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान इकोनॉमिक ट्रबल्स हैव बिन थारोली डिसेक्टेड ओवर द पास्ट ईयर एंड हाफ, यानी कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मुश्किलात हैं उन्होंने थारोली जो है वो डिसेक्टेड कर दिया है। डिसेक्टेड का मतलब होता है तशरीह करना या एनालाइज करना, स्प्लिट ऑफ कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। मीनिंग ईच पार्टीज पॉलिसी टसार
had more than enough time and material to come up with their proposals on how best to address them. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टीज़ हैं उनके पास उन अपनी पॉलिसी का वो एक जो मैनिफेस्टो ला सकते थे या उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते थे। उनके पास जो मसवदे थे, तजवीज़ात, वो तजवीज़ लेके आ सकते थे कि वो इन हालात से कैसे नमूद आज़मा होंगे। ट्रबल्स का मानी होता है मुश्किलात, और इसके सेम मानी रखने वाले इश्यूज, प्रॉब्लम्स, एंटोनिम्स एंड सॉल्यूशंस, पीस और डिसेक्टेड तशरीह करना, एनालाइज्ड और सेपरेट सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं असेंबल्ड, होल्ड और टसार, इसका मतलब होता है एम्परर, किंग, यानी कि अगर जब हुकूमत उनको आएगी तो इसे माने रखने टसार मतलब जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनके पास क्या प्रपोजल थे। जबकि इसके एंटोनिम में सब्जेक्ट्स और पीजेंट्स। प्रपोजल्स का मतलब होता है तजवीज़ लाना, और इसके सेम माने रखने वाले अल्फाज हैं सजेशंस, प्लान्स, और इसके एंटोनिम्स हैं रिजेक्शंस, डिनायल्स। Lastly, considering how hard the entire state apparatus has been pushing for a political reset. आखिरकार या आखिर में कंसिडरिंग, इस पर गौर करें, हाउ हार्ड द इंटायर स्टेट, कि पूरी सूरत हाल या पूरी जो स्टेट है वो किस तरह से, जो स्टेट का पूरा एक सिस्टम है, हैज़ बिन पुशिंग फॉर अ पॉलिटिकल रीसेट, कि वो इसको मजबूर कर रहा है, वो पुश कर रहा है, वो दबा रहा है कि पॉलिटिकल रीसेट किया जाए, पॉलिटिकल जो है वो सियासत को एक असर नौ इसका तजद्दुद किया जाए। वन वुड हैव assumed that the parties being positioned to fill the vacuum, और इस तरह से जो एक वन वुड हैव assumed, एक बंदे को ये तसव्वुर कर लेना चाहिए that the parties being positioned, जहाँ पे पार्टीज़ अब मौजूद हैं, to fill the vacuum, उनको ये खला पुर करनी है, लेफ्ट आफ्टर द PTI's रेलीगेशन, जो PTI पर पाबंदियाँ हैं उन पर लगने के बाद या जो स्पेस खाली हुई है वो कैसे पुर करनी है, टू नॉन ग्रेटर स्टेटस, ताकि वो अपनी जो है वो स्टेटस पूरा हो सके या उसकी कमी पूरी हो सके। वुड हैव हैड सम न्यू आइडियाज़, इससे क्या है कि नए कुछ ख्यालात का या तसव्वुरात की ज़रूरत है। विद विच वे टू रैली पब्लिक सपोर्ट, जिससे टू देयर साइड, और वो आइडिया ऐसा होना चाहिए जिससे आवाम की वो राय और सपोर्ट हासिल कर सकें। क्लियरली नो बडी सीम्स टू हैव टेकन मच इंटरेस्ट इन डूइंग देयर होमवर्क, इस सारी सूरत हाल से ऐसा हो नहीं पाया जो हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी जो पार्टी है या कोई भी साइड है उसने इस चीज़ पे होमवर्क ही नहीं किया जिससे चीज़ों को ठीक किया जा सके। लास्टली का मतलब होता है आखिरकार, और सिनोनिम्स इसके हैं फाइनली, इन कंक्लूजन। एंटोनिम्स हैं इनिशियली, फर्स्टली। रेलीगेशन का मतलब है चरखी से बाहर रखना, यानी कि पूरे सेटअप से बाहर रखना, इसके डिमोशन और डाउनग्रेडिंग। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं प्रमोशन, एलिवेशन, जबकि एपरेटस औजार हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इक्विपमेंट, मशीनरी, और इसके एंटोनिम है इनकम्पिटेंस, इनकैपेसिटी, और नॉन ग्रेटा मतलब नापसंद, अनवेलकम, अनडिज़ायरेबल, जबकि इसके एंटोनिम है वेलकम, एक्सेप्टेबल। It seems that the parties are greatly underestimating the burden they will receive if they come to power. इसका मतलब ये हुआ कि पार्टीज़ जो हैं वो इसको बहुत गलत ले रही हैं, या उसके ऊपर इनका सही अंदाज़ा है ही नहीं कि अगर उनको गवर्नमेंट मिलेगी या वो पावर में आएंगे तो उनके ऊपर कितना बोझ होगा। कंसिडरिंग द प्लेथोरा ऑफ चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द कंट्री, कि अब वक्त जो अब कंसिडरिंग द प्लेथोरा ऑफ चैलेंजेस, कि जो अब मुश्किलात का एक पहाड़ है, बीइंग फेस्ड बाय द कंट्री, जो इस वक्त हमारा मुल्क को दरपेश हैं। नेविगेटिंग द ट्रबल्ड वाटर्स पाकिस्तान इज़ इन विल नॉट बी एन ईजी टास्क, कि पाकिस्तान अब कितनी गहराई में या मुश्किलात के गहरे पानियों में फंस चुका है, इसका अंदाज़ा लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। विच एवर पार्टी गोज़ ऑन टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, जो भी पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी, विल फेस स्टीप चैलेंजेस, उसको बहुत सख्त और परेशान कुन जो है वो मुश्किलात पेश आएंगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेनफुल सोशल एंड इकनॉमिक एडजस्टमेंट, जो माशरे और मुआशी दोनों के अपनी जगह पर आने के लिए तकलीफ़ दे मरहले से गुजरना होगा। अब यहाँ पे हमारे जो वर्ड हैं, अंडर एस्टिमेटिंग है तखमीना कम करना, इसके सिनोनिम्स हैं अंडर वैल्यूइंग, बिलिटरिंग। एंटोनिम्स हैं ओवर एस्टिमेटिंग, प्लेथोरा, बहुतात अफराद,
अफरा मतलब अफरावा, ये बोतात का मतलब कसरत होता है। पहले थोड़ा, पहाड़ जैसा मैंने कहा। अबंडेंस एंड एक्सेस आर सिनोनिम्स, जबकि इसके एंटोनिम है स्कैरसिटी, शॉर्टेज। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टीप, ढलवानी, चढ़ाई करते हुए, जो बिल्कुल सीधा होता है जैसे दीवार हो। इसके सिनोनिम्स हैं प्रेसिपिटस, शार्प। और इसके एंटोनिम है ग्रेजुअल, जेंटल। और नेक्स्ट वर्ड है पेनफुल, दर्दनाक, तकलीफ दे। और इसके सिनोनिम्स है एक्किंग, डिस्ट्रेसिंग, जबकि एंटोनिम है पेनलेस, कंफर्टेबल। In this context, it would have been helpful for voters, इस सूरत हाल में जो वोट देने वाले यानी कि अवाम के लिए ये फ़ायदा होगा, ये उनकी मदद होगी। ऑब्जर्वर्स एंड कमेंटेटर, जो ऑब्ज़र्व करने वाले मुशाहिदीन और जो कमेंट करने वाले यानी कि जो बहस करने वाले, टू हैव रेफरेंस टू सम डॉक्यूमेंट, कि उनके पास कोई ऐसा कागज़ हो जिससे वो रेफरेंस दे सकें, विच दे कोड जज ईच पार्टीज सूटेबिलिटी, जिससे वो बाद में अंदाज़ा लगाएं कि या अभी भी वोट देने से पहले वो अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सूटेबल है। यानी कि बात यहाँ पे मैनिफेस्टो की हो रही है। टू गवर्न एट सच अ क्रिटिकल जंक्चर इन द कंट्रीज़ हिस्ट्री, कि वो मुल्क के इस मुश्किल तरीन हालात में कैसे फ़ैसला भी करें और इस मुश्किल हालात में कौन सी पार्टी उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। वर्ड जो है हमारे कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सियाको सुबाक। और सिनोनिम्स हैं इन्वायरमेंट, सेटिंग, बैकग्राउंड। और एंटोनिम्स हैं आइसोलेशन, इररेलेवेंस, अनरिलेटेडनेस। जबकि नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंस, जिसका हवाला दिया जा सके, यानी कि मैनिफेस्टो। साइटेशन, एल्यूजन, मेंशन, ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं ओमिशन, एक्सक्लूजन, डिसरिगार्ड। सूटेबिलिटी है मौजूनियत, यानी कि मौजू सूटेबिलिटी देखी जा सके कि वो मौजू है या नहीं है। इसके सिनोनिम है एप्रोप्रिएटनेस, फिटनेस, रेलेवेंस। जबकि एंटोनिम्स हैं इनएप्रोप्रिएटनेस, अनफिटनेस, इररेलेवेंस। जबकि जंक्चर नेक्स्ट वर्ड है मौके यानी मौका, पॉइंट, मोमेंट, ओकेजन। जबकि इसके एंटोनिम है सेपरेशन, डिस्कनेक्शन और आइसोलेशन। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती सी, दी बिगर पार्टीज़ हैव चोज़न द एड हॉक अप्रोच, जो बड़ी पार्टीज़ हैं उन्होंने आर्जी तौर पर एक अपनी जो है अप्रोच यूज़ किया है। गेट पावर फर्स्ट, उनका अंदाज़ा ये है कि वो पहले पावर में आए, ताकत में आए, यानी कि गवर्नमेंट में आए। डिसाइड व्हाट टू डू विद इट लेटर, और हालात को नबद आजमा कैसे होना है या हालात के साथ निमटना कैसे, ये बाद में देखेंगे। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका अंदाज़ा है। दे आर टू टेक लेसन फ्राम जमात इस्लामी, उनको चाहिए कि वो जमात इस्लामी से सबक सीखें। विच डिस्पाइट इट्स वेरी मोडेस्ट प्रॉस्पेक्ट, बावजूद इसके कि उसके पास इतना कोई बड़ा चांस नहीं है या उसकी इतनी ताकत नहीं है। सीम्स टू हैव एक्सपेंडेड कंसिडरेबल थाट, लेकिन उन्होंने इस पर बहुत सारा वर्क किया है और उन्होंने सही ख्याल का इज़हार किया है। एंड एफर्ट ऑन डिलिनिटिंग, यानी डेलिनिटिंग, उन्होंने एक खाका सही खींचा है। व्हाट इट कैन अचीव, के हासिल क्या होगा, वो कैसे हासिल करेंगे। इफ़ गिवन एग्जेक्टिव पावर, अगर उनको ताकत दी जाए या उनको जो गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला तो वो क्या करेंगे, उन्होंने इसकी अच्छी वजाहत की है। तो अब जो इसमें पैराग्राफ में वर्ड यूज़ हुए एड हॉक का मतलब होता है आर्जी तौर पर। और इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्रम्प्टो, टेम्परेरी। जबकि एंटोनिम्स हैं प्लान्ड, सिस्टमेटिक। ऑट नेक्स्ट हमारा वर्ड है जिसके मानी है चाहना या चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऑट टू, मस्ट टू, यानी कि इसके सेम है शुड, मस्ट। जबकि एंटोनिम है शुड नॉट, मस्ट नॉट। प्रॉस्पेक्ट्स हैं तवक्कुआत, आउटलुक और पॉसिबिलिटीज सिनोनिम्स हैं। सेटबैक्स एंड लिमिटेशन इसकी एंटोनिम्स हैं। डेलिनिटिंग, खाका बनाना, किसी को वाज़े करना, एक तस्वीर कशी करना, इसका मतलब होता है डिस्क्राइबिंग और आउटलाइनिंग। इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं ऑब्स्क्योरिंग, ब्लरिंग, यानी कि बनी बनाई चीज़ को ख़राब करना। सो यहाँ पे ये डॉन न्यूज़ की 20 जनवरी की ये एडिटोरियल था। और चैनल का आप हिस्सा बने, और आपके पास कोई अच्छी सजेशन हो कमेंट लाजमी करें ताकि हम इसको और बेहतर भी कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।